اور اس دور کا یہ ایک طرح سے ریفلیکشن ہے جس دور میں یہ سب ہمارے بڑوں نے یہ آئین بنایا تھا کہ ایک عالمی سطح پر بھی اور پاکستان کے اندر بھی جب ہم آئین کی اور جمہوریت کی اور عوام کی بالادستی کے عوام کے حق حکمرانی کی بات کرتے تھے تو یہ عام تاثر تھا کہ اس میں ہمیں ایک معاشی اور سیاسی نظام بھی ایسا ترتیب دینا پڑے گا جس میں واقعی عوام کے حق حکمرانی کو اور عوام کے بنیادی حقوق کی ضمانت دی جا سکے۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے صبح اس پر بات کی ہے نہیں، مجھے اکثر لگتا ہے کہ جب آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بات ہوتی ہے وہ یہ تو ضرور بات ہوتی ہے کہ ایک ادارہ ہے جو کہ غیر منتخب ہے اور وہ سارے ہمارے حقوق طلب کرتا ہے، لیکن وہ ادارہ اور اس کے ساتھ بہت سارے اور طاقتور لوگ صرف ایک آئینی یا قانونی حوالے سے ہمارے حقوق طلب نہیں کرتے، وہ زمینوں کو بھی طلب کرتے ہیں، وہ پانی کے ذخائر پر بھی قبضہ کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ سندھ سراپا احتجاج ہے، وہ جنگلات، وہ مطلب معدنیات، اور اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہمارے جیسے شہر ہیں یا مضافاتی علاقے ہیں تو کوئی زمین کا ٹکڑا چھوڑا نہیں جاتا کہ اس کو کسی نہ کسی ریلیا یا کوئی اور اسکیم کے تحت جو ہے نا اس کو ایک ریئل اسٹیٹ کا ایک یعنی کہ حوالہ دیا جائے۔ آئی تھنک یہ جو قانون اور آئین اور جمہوریت کا جو سوال ہے، اگر ہم اس میں سے معاشیات کے سوال کو مائنس کریں گے تو یہ نہ صرف محدود رہے گا بلکہ نامکمل رہے گا، اور اگر ہم نے عوام الناس کہ عوام کی بھاری اکثریت، چاہے وہ محکوم اقوام کی بات ہو یا چاہے وہ مجموعی طور پر محنت کش عوام کی بات ہو، اگر ہمیں جمہوریت اور آئین اور قانون کا مسئلہ ان تک پہنچانا ہے اور ان کا مسئلہ بنانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یعنی کہ بہت اولین اس کو اپنا ایک جدوجہد کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ میں صرف آپ کو دو مثالیں دیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو آج کل سندھ میں کنال کالونائزیشن ہو رہی ہے، دوسرا یہ آپ دیکھیں گے آج کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یہاں پہ تو کوئی منتخب حکومت تو ہے ہی نہیں، ایک ادارہ ہے جو اپنی من مرضی کرتا ہے، سی ڈی اے، اور سی ڈی اے کس کے لیے کرتا ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، جو ایسٹ سیکٹر میں جنہوں نے پورا ایک اپنا نیا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ یہ دن نہیں گزرتا کہ قانون کے نام پر، میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ فیصل بھی بیٹھے ہیں، سلمان بھی بیٹھے ہیں، قانون کے نام پر انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہوتے ہیں، کبھی کسی ریڑھی والے کو کھاڑا جاتا ہے، کبھی شہر کے مزدوروں کو کچی بستیوں میں ان کو بلڈوز کیا جاتا ہے۔ I think we have to address this question کہ قانون کی بالادستی کے نام پر کبھی کلونیل زمانے کے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کا حوالہ دے کر زمینوں پر قبضے کیے جاتے ہیں، کبھی کوئی جیسے بھٹو کے دور میں ڈیفینس آف پاکستان رولز کے نام پر سب کچھ ہوتا تھا۔ دس کوسچن آف ملٹرائزیشن آف دا اسٹیٹ اینڈ ڈیموکریسی، اس کو آپ کو ہر صورت میں عوام کے روزمرہ کے مسائل کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، مگرنہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اور ہم تو اس بحث کو تو شروع دن سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن جیسے 70 کی دہائی میں آپ کو ایک سماج کے اندر ابھار نظر آتا تھا، جو کہ اس وقت تو شاید ہم مزدوروں اور کسانوں اور طالب علموں کی تنظیموں کی بات کرتے ہیں، بے شک آج وہ بھی ہیں اور انداز میں بھی لوگ ہو کر متحرک ہو کر اپنی بات کرتے ہیں۔ But my appeal to all of you is coming from the left کہ آپ جب تک اس سوال کو اپنی سیاست اور اپنے جمہوری اسٹرگل کا حصہ نہیں بنائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ناکام ہی رہیں گے، کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور مجھے لگتا ہے ایک بڑے پیمانے پر ملک گیر سطح پر بھی، کیونکہ کہیں پہ محکوم اقوام کی تو بات ہو رہی ہے لیکن ہمیں ساتھ میں اس سوال کو جوڑنا پڑے گا آپ محنت کا سوال کے ساتھ بھی، کیونکہ پنجاب میں بھی موجود ہے، تاکہ ہم کوئی بڑی سطح کی سیاسی موبلائزیشن کریں اور حقیقی معنوں میں جمہوریت کا قیام جو ہے نا عمل میں لا سکیں۔ Before you speak, we need one more chair. کرسی یہاں پہ اور چاہیے۔ زبیر نوربری صاحب ہم سے رہ گئے تھے، انہیں انوائٹ کرنا ہے لیکن ہمیں
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, बहुत शुक्रिया चंद्री साहब, शायद सरकार आबादी साहब कि आपने मुझे बुलाया। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आज क़यामत क्यों ना टूट पड़ी कि एक जनरल को इंटेलेक्चुअल के साथ बिठा दिया जिसका नहीं। लेकिन मेरा यहाँ मेरी मौजूदगी इस बात की दलील है कि ये एक नेशनल शो है, और चाहे रिटायर्ड लोग हों, अपने फौजी या सर्विंग हो, इसी सोसाइटी का हिस्सा है। इतने ही अच्छे या बुरे जितने आप और हम सब हैं। लेकिन जो सिविल मिलिट्री रिलेशन है जिसका जिक्र भी हुआ, इसका मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। एक बात जो मेरा ख्याल है कि महकम होनी चाहिए, और मौजूदा लीडरशिप, हर किसी भी लीडरशिप को समझनी चाहिए, चाहे वो अपोजिशन में हो या जहाँ भी हो, या उनके पीछे हों या आगे हों, कि सियासत, मईशत और सिक्योरिटी ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि इनको किसी तरीके से जुदा नहीं किया जा सकता। अगर किसी की ये सोच है कि मैं पहले मईशत को ठीक कर लूँ और बाद में ये कर लूँगा, या मैं पहले ये कर लूँ, तो ये होने वाला काम नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई हैं, इसकी ज़्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत मोहतरम लोग बैठे हैं, इसलिए अच्छी तरह इस बात को समझते हैं। फौज और सिविल के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हमेशा कहता रहता हूँ, मेरी पूरी काविश आजकल आप लोग जानते भी होंगे कि किसी तरीके से इंस्टीट्यूशंस और आवाम की अक्सरियत जो है ये करीब आ रहे हैं, क्योंकि इनकी दूरी जो है उनके लिए बहुत खतरनाक है। और अगर आप देखें कि जो ये अरब स्प्रिंग के नाम पे जो हुआ, ऐसे ही किया गया कि अवाम को तोड़ा गया, एक तरफ स्टैब्लिशमेंट को खड़ा किया गया अवाम के साथ, दूसरी तरफ और फोर्सेस को किया गया, उनको लड़ा के जब फौजें कमजोर हो गई तो उस मुल्क को तहस कर दिया गया। तो फौज के बगैर हमें अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से कोई नहीं बचा सकता, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इंस्टीट्यूशन को ये समझना चाहिए कि उनकी पॉलिसी के ऊपर जो तनकीद है वो किसी भी तरीके से इंस्टीट्यूशन एज ए होल की तनकीद नहीं है। इंस्टीट्यूशन का बहुत कदर करते हैं, आज भी वो जाने दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, लेकिन जो पॉलिसी की तनकीद है, हम आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं उन पर भी तनकीद होती है, लेकिन वो एक जो है इंस्टीट्यूशन को फिर भी हम एक तौकीर से देखते हैं। साथ ही साथ ये बात सोचने की है, इंस्टीट्यूशन के सोचने की है कि बड़ी तादाद में अवाम को साइडलाइन करके आप मुल्क नहीं चला सकते। अब ये दो पोल्स हैं, इनको किस तरीके से इसको हमें इसका मसले को हल करना है, ये सोचने की बात है। इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है कि हमारे पास कानूनी रास्ते कौन से हैं और हमारे पास आईनी रास्ते कौन से हैं। उसके अलावा फिर अगर वो दोनों रास्ते मसदूद हो जाएं तो फिर और रास्ते कौन से हैं, ये डायलॉग करने की जरूरत है उनके साथ भी जिन्होंने ये रास्ते रोके हुए हैं। तो बुनियादी तौर पे हम जो इधर जमा हुए हैं, मेरा ख्याल है कि जो हल हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि सबने सही इसका तशख़ीस कर दी है कि पाकिस्तान की रेल अपनी आईनी और लॉ की पटरी से उतर गई, और जब ये रेल इतनी हैवी पटरी से उतर जाए उसको वापस पटरी पे लाना कोई आसान काम नहीं है, एक किसी एंटिटी का काम नहीं है। ये सबको हमें इंशाल्लाह मिलकर करना होगा, और इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन इस्तिस्ना नहीं है। और एक चीज़ साफ है कि कल जब पॉलिटिकल बात होगी तो संदीप बातचीत होगी कि क्या जितनी चेंजेस हुई हैं आइन में या कानून में, वो इस किस्म की असेंबली के उसमें प्रोव्यू में आती थी या नहीं आती थी, क्या ये बात में चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये आपके करने की बात है। अच्छा नहीं साहब, आपसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, और ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। अफवाज पाकिस्तान वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो तनासब है भर्ती का, फौजियों का, सिपाहियों की बात कर रहा हूँ, अफसरों के बारे में आपने ठीक है, सिपाहियों का तनासब एग्जैक्टली हर डिस्ट्रिक्ट का जो आबादी का तनासब है उसके मुताबिक है। थोड़ा सा फर्क बलूचिस्तान में की वजह से है, सिंध में पूरा हो चुका है। हर सिंध का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो प्रपोर्शन है आबादी का, उसी हिसाब से फौज में भी मौजूद है। आपको पता है कि जहाँ तक ऑफिसर्स का ओपन कंपटीशन है उसमें ऊंच नीच हो सकती है कोई, लेकिन आपको मालूम होगा कि बलोच भी 3 स्टार रहे हैं, पठान तो बहुत होते हैं, कश्मीरी भी हैं, सिंधी भी हैं, और अभी बलूचिस्तान के कुछ लोग लेफ्टिनेंट कर्नल की लेवल तक पहुंचे, क्योंकि वहाँ पर बाद में खोले गए वो जो आपके इंस्टीट्यूशन, वो भी इंशाल्लाह ब्रिगेडियर और जनरल बनेंगे। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब तक आप इस ट्रेन को वापस आइन और लॉ की पट्टी पर नहीं चलाते, और जब तक ये अवाम और इंस्टीट्यूशन की जो चक्कर है इसको ख़त्म नहीं करते, पाकिस्तान को दोबारा
जमहूरी लाइनों के ऊपर चलाना और तरक्की की राह पर डालना बहुत मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल जब हम ये बात कर रहे हैं आइन और कानून की हुक्मरानी, तो सबसे पहली बात ये कि मुझे इस वक्त ये ख्याल आया था कि जनरल ज़ियाउल ने एक दफ़ा कहा था कि आइन जो है कागज़ का टुकड़ा है जिसको किसी को भी फाड़ के फेंका जा सकता है। ज़ियाउल साहब उस पर कामयाब हुए या नहीं हुए, लेकिन हमारी जो इस वक्त पार्लियामेंट है वो इस बात में कामयाब हो गई है कि जिस तरह से आइन की प्रक्रिया की गई, तो मैं समझता हूँ कि वो इसी तरह से हुई है कि आपने यानी आइन नामी कोई चीज़ इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान में देखें हुकूमत कभी भी, आप सही तौर पर अगर देखा जाए तो शायद कभी भी अवाम की हुकूमत नहीं रही, यानी अवाम के वोटों से आई हुई हुकूमत शायद बहुत ही कम वक्फे की रही होगी शायद। लेकिन आप जब देखें कि यहाँ पे जितने भी इलेक्शंस हुए हैं या इलेक्शन से पहले भी 75 साल की तारीख देख लें, तो सबसे बुनियादी मसला क्या है पाकिस्तान में। हम आज किसी सूरत हाल की बात नहीं कर रहे, 75 साल की अगर आप तारीख देख लें तो जो आपका पावर स्ट्रक्चर है वो कभी तब्दील नहीं हुआ है। चाहे आप शुरू का देख लें या आज की सूरत हाल में देख लें, तो आपको जो पूरा जिन लोगों के पास इक़्तिदार रहा है उसमें थोड़ी बहुत शक्लें तब्दील हो गई, बाद में तो शक्लें भी तब्दील नहीं नजर आती हैं हमें, लेकिन वही की वही है। और उनके मफादात भी जो है वो उसकी तहत जो है वो निज़ाम चलता है। और मेरा ख्याल ये कि असल पाकिस्तान का अलमिया यही है कि जो जिसको हम कहते हैं कानून की हुक्मरानी, तो कानून की हुक्मरानी जो है हवा में नहीं आती। सबसे पहले जो चीज़ आती है कि अवाम को हुकूक मिले हैं या नहीं मिले, इब्तदा तो वही से होती है। आज चाहे कुछ भी तकरीरें कर लें आप कि जो है आज ये होना चाहिए, लेकिन असल मसला मैं सिर्फ आज की अगर रखता हूँ बात में, तो जब एक पार्लियामेंट ऐसी मुंतखब होती है कि जो है वो अवाम से नहीं मुंतखब होती है बल्कि चंद लोगों की मर्जी से होती है। मैं इसमें वाक़या बताता हूँ आपसे कि जनरल बाजवा एक दफ़ा मुलाकात हुई अकेले में, वैसे मैंने पूछा कि आपने इमरान खान को सब कुछ, इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसका, और कि आपने सपोर्ट किया। हमने कहा हुआ ये था कि जब हमने नवाज शरीफ साहब को हटाया तो हमारे जितने भी जो फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग कर ले या कोर कमांडर की मीटिंग में, तो मैं उनसे राय ली तो उसमें 90% कहते थे कि इनको नहीं आना है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद इमरान खान को, तो उन्होंने कहा कि हमने फैमिलीज को बुला लिया और फैमिली की राय को बुलाया। 99% लोगों की राय ये थी कि ये इनको नहीं आना चाहिए और उसको आना चाहिए। तो फिर मैंने जब ये सुना है तो फिर आप बताइए कि जब ये इंतखाबात जो है इसके बाद क्या मायने रखती है। जब ये आप अपने ही लोगों में तय कर लें कि किसको इक़्तिदार में लाना है किसको नहीं लाना है, तो फिर तो बाकी चीज़ें जो है बिल्कुल बेमाने होकर रह जाती हैं। और मेरे ख्याल पाकिस्तान में अब यही हो रहा है। पहले शायद किसी और की पसंदीदा की थी, और मेरे ख्याल 2023 में या 22 में जो कुछ किसी किस्म की कोई मीटिंग हुआ होगी, उन्होंने कहा होगा फलाने को लाना है। तो फिर जो सारी चीज़ें जो होती जो आपके इलेक्शंस में, वो हम सब जानते हैं कि क्या वो अवामी मैंडेट के साथ ही हुकूमत आई है, नहीं आई है। लेकिन हम जब यहाँ बैठे हुए यहाँ पे, मैं तो थोड़ा सा और उसको वसी करता हूँ कि सिर्फ अगर आपको वाकई जद्दोजहद करनी है तो फिर उसको और वसी करें। सिर्फ इक़्तिदार की जंग की सूरत में नहीं रखेंगे, उन चीज़ों को आप लाएं जिसमें कहते हैं, जिसको कहते हैं अवाम की हुक्मरानी। तो अवाम की हुक्मरानी जो है उसके और भी मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी उस निज़ाम में जहाँ पे अवाम के हुकूक भी मिलते हैं। मतलब ये कि अगर आपने आइन को अगर पढ़ा होगा तो उसमें ये भी है कि अवाम के हुकूक बहुत ज़्यादा लिखे हुए भी हैं कि उनकी तालीम का हक़ है, उनको मुलाजमत का हक़ है, लेकिन क्या उन चीज़ों पर अमल होता है। और अब जो है एक और बात यह है कि जब एक ऐसी सूरत हाल आपके मुल्क की अक्सरियत एक ऐसे निज़ाम में जकड़ी हुई हो, सोशल सिस्टम में, जिसमें आपके लोग महकूम हो, तो वो अपने हक़ इख्तियारी नहीं इख्तियार कर सकते। उनका हक़ इख्तियारी जो है, ये वोट का हक़ है, वो बेमानी रह जाती है। उनको हुक्म आता है कि आपको फलाना वोट पे मिलना है, वो चल के देख सकते हैं जब अगर वोटिंग हो भी जाए। बाकी तो आपको पता है कि किस तरह से मैंने अभी डिस्कस किया, किस तरह से हुकूमतें बनती हैं और किस तरह से तब्दीली आती है। शुक्रिया। मैं
is the case. थैंक यू जी। देखिए, सबसे पहले तो मेरे नज़दीक भी आइन की बालादस्ती का इशू असल में तो अवाम की हुक्मरानी का इशू है। तो पहले तो ये सवाल होता है कि पिछले 70 सालों में पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती क्यों कायम नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि ज़ाहिर है कि ऐसा ही है ना कि जब आप रियासत और रियासत के ऊपर जो हुक्मरान तबकात हैं वो आइन की पामाली करते रहते हैं। पहले वो छोटे लेवल ये ऐसे ही जैसे वायलेंस होता है ना, जेंडर बेस्ड वायलेंस। पहले घर में गाली पड़ती है, अगर गाली को ना रोका जाए तो थप्पड़ पड़ता है, थप्पड़ को ना रोका जाए फिर डंडा पड़ता है, डंडे को ना रोका जाए तो फिर हड्डी पसली टूटती है ना। तो पिछले 70 सालों में पहली दफ़ा तो कानून की जो है आइन की वायलेशन या हमारे जो हकूक़ है उसकी वायलेशन तो नहीं हुई। हम तो पिछले 70 साल से देख रहे हैं ना कि मुसलसल जो है वो आइन को पमाल किया जाता है। और पमाल करने वाले जो कुव्वतें हैं अनफॉर्चुनेटली जो सियासत के मैदान में, मतलब ज़ाहिर है कि जो यहाँ पे बात हो रही है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है कि पाकिस्तान के अवाम का ये फैसला है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री का अपना रोल है, उनका रोल आइन के अंदर डिफाइन कर दिया गया है। उन्होंने सरहदों की हिफाजत करनी है। पॉलिटिक्स में उनका कोई किरदार न था, न है, न होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में हम इस सवाल के ऊपर अवामी राय अवाम को को हमवार कर सकते हैं कि जो उसमें हम मिलिट्री की कोई जो रोल है उसको पॉलिटिकल एरिना के अंदर लेकर आए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो सिविल स्पेस के अंदर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने यही किया है, क्योंकि हम तो एज एक्टिविस्ट आई एम अ वेरी पॉलिटिकल पर्सन, आई वाज एसोसिएटेड विद लेफ्ट पॉलिटिक्स। लेफ्ट पॉलिटिक्स में भी आप समझे कि मौलवियों की तरह 72 फिरके हैं, एक पार्टी बनती है, 4 पार्टियां बनती हैं, तो जब टूटती हैं तो 6 हो जाती हैं। तो आई ऑल्सो फील कि प्रॉब्लम वहाँ भी है। लेकिन देखिए जो इस वक्त सूरत हाल है जिसमें जो भी अपोजिशन की, क्योंकि हम एज ए एक्टिव सिटीजन इस बात से बहुत थक चुके हैं कि अवाम आपको वोट के जरिए लेकर आते हैं उन पार्टियों को जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्या है, सिर्फ फौज नहीं है बल्कि तमाम वो इवन पॉलिटिकल फोर्सेस जो स्टेटस को मेंटेन रखना चाहती हैं, जो पाकिस्तान में तबकाती तफरीक को, कौमी तफरीक को, सिंधी तफरीक को, मजहब की बुनियादों पर तफरीक को कायम रखना चाहती हैं। वो तमाम जो लोग हैं वो जब सियासी जमातों के बाद हम ये देखते हैं कि वो जब इनके साथ मिलते हैं, जब वो पावर में आते हैं, लोग उनको वोट देते हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट एजेंडा के ऊपर। जब वो पावर में आते हैं तो वो उन्हीं पॉलिसीज को कंटिन्यू करते हैं जो कि एसेंशियली अवाम दुश्मन पॉलिसी है, जिसका जिक्र आसिम सज्जाद साहब ने तफसील से किया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने नई तरह के हमें यहाँ पे जो क्राउड बैठा है मुझे उसको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले पाकिस्तान की रियासत की हैयत को समझे। हम सब समझते हैं कि हम एक न्यू कॉलोनियल सेटअप के अंदर हैं। हम अभी भी एक प्रो इंपीरियलिस्ट एजेंडा को हमारी रियासत सपोर्ट करती है। हमने यहाँ फ्रंट लाइन स्टेट बनकर पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है, जिसने पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहद मसाइल पैदा किए हैं। तो अब ये है कि इस न्यू कॉलोनियल स्टेट को हम उसी वक्त बदल सकते हैं जब इसमें वाक़ईतन जो पाकिस्तान के बेनकश तबके की आप अमलदारी हुक्मरानी कायम करेंगे। उस हुक्मरानी के लिए इस वक्त जो आप जैसे लोग जो लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करें कि आज की अपोजिशन के लिए पाकिस्तान के अवाम में ट्रस्ट डेफिसिट है, आपको ये मानना पड़ेगा। अगर आपने लोगों को मुतहिद करना है, पाकिस्तान के अंदर तमाम जो सोशल मूवमेंट्स हैं, जो औरतों की तहरीकें हैं, जो स्टूडेंट्स की तहरीकें हैं, जो कौमी जैसे PTM की तहरीकें हैं, मतलब जो भी अवामी मसाइल के ऊपर जो आवाज़ें पाकिस्तान में उठ रही हैं, उनको अगर आप इकट्ठा करेंगे, आपको वो उसी सूरत में होगा कि आप उन तमाम क्रेडिबल, जैसे ये चेहरे कुछ क्रेडिबल चेहरे इस पैनल में हैं, मैं सबको नहीं कहूँगी लेकिन कुछ चेहरे जो क्रेडिबल हैं, अगर आप उस लीडरशिप को, अगर आपने कोई यहाँ पे एक अवामी तहरीक चलानी है तो आपकी सफ़ों में उन लोगों को वो लीडरशिप पोजीशन में नजर आने चाहिए जिनकी पाकिस्तान के अंदर क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो चुकी है, जो कि वर्किंग क्लास के इश्यूज के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, औरतों के इशू के ऊपर, कौमियतों के इशू के ऊपर, मजहबी अक़लियतों के इशू के ऊपर, मतलब
ब्लास्फेमी के इशू पे कोई सियासी जमात जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। और रियासत का जो चेहरा है उसके अंदर मतलब वो इतना मेल डोमिनेटेड है, मुझे मेल डोमिनेशन से कोई मसला नहीं है। अगर वो मर्द जो है वो एक फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस रखें, जेंडर की उनकी अवेयरनेस हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। So what I want to conclude actually कि देखें इस वक्त ज़रूरत है, वो मैं कह रही हूँ कि इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से पामाल किया गया है, माजी की तमाम पामालियों से ये बदतरीन सूरत हाल है और अवाम का एक कंसर्न है और एक ऐसा माहौल है जिसमें अवामी तहरीकों को जोड़ा जा सकता है। और उसमें जो अपोजिशन है, आप अपने अंदर भी देखें कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। औरतों को आगे लेके आए, स्टूडेंट की तहरीकों को, लीडर्स को आगे लेकर आए, वर्किंग क्लास की तहरीकों को, लेबर की तहरीक के जो लीडर्स हैं जो क्रेडिबल हैं, जो लॉयर्स हैं, क्रेडिबल लॉयर्स, जर्नलिस्ट, अगर आप उनको अपनी इस वक्त फ्रंट लाइन पे लेकर आए और आप खुद उसके पीछे हो जाए, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चनेबल है, तो उस सूरत में सारी हाथ लगा दिया। देखिए हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे हैं, मतलब इसीलिए मेन स्ट्रीम सियासी जमातों में जाने का नहीं सोचते, क्योंकि वहाँ अपनी इंटेग्रिटी को जाना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनर पार्टी डेमोक्रेसी तो किसी भी जमात में नहीं है, लिहाजा हम लोग पीछे ही रहते हैं। तो एनीवे आई विल स्टॉप हियर एंड आई पास दैट ऑन टू द नेक्स्ट। ये अच्छा है कि आप घंटी बजा देते हैं, मैंने भी लगा दी। अच्छा जी, बातें तो बहुत हुई सुबह से और इस तरह की बातें हम पिछले 70-80 साल में बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, तो लेकिन फिर somehow we are always back to square one, वहीं पर आ जाते हैं। तो सुबह से जिन लोगों ने बातें की हैं उनमें कुछ लोगों ने मौजूदा हालात पे बात की है, कुछ लोगों ने इसको बड़ा वसी पस मंजर में देखा है। मिसाल के तौर पे चट्टी साहब ने जो बातें की, उन्होंने बड़ा वसी पस मंजर में चीज़ों को देखा था और सोवियत यूनियन का हवाला दिया था। तो मैं इनके वालिद की तरफ जाऊंगा और रिकॉल करूंगा, अब्दुल समद खान जगदई नेशनल अवामी पार्टी के बानियों में शामिल थे, बादशाह खान थे, और कुछ जो थे मियां इंतखाबी टीम थे। अगर उस वक्त की डॉक्यूमेंट से देखा जाए तो आज जो हम मसाइल का सामना कर रहे हैं, अगर उस वक्त ये हमारे अकाबिरीन जो कह रहे थे उसको सुन लिया जाता तो आज हम बैक टू स्क्वायर वन यहाँ खड़े होकर वही बातें नहीं करते जो 1957 में जब नेशनल अवामी पार्टी बनाई गई थी, उस वक्त जिन नुकात का इन लोगों ने इजहार किया था। और वो नुकात क्या थे, वो आज भी नहीं वैलिड है। देखें, जो हमारे आइन के मसाइल हैं उनके हल के लिए पहली बात तो ये कि आइन चाहिए, कि उससे अगर कोई तालिब इल्म पूछता है कि आइन क्या है, तो मैं कहता हूँ कि आइन मुल्क का सबसे बड़ा कानून है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड का सुप्रीम लॉ है। इसका मतलब ये है कि अगर रियासती इदारे खुद उस सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड की खिलाफ वर्जी करते हैं तो रियासत अपना ये जवाब खो देती है, इखलाकी और कानून की जवाब खो देती है कि वो आवाम से कहे कि आप कानून की पासदारी करें। इसीलिए ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर रियासती सतह पर कानून की आइन की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो हम मुल्क में जो लाकानूनियत देख रहे हैं उसकी जड़ें वहीं से शुरू होती है कि जब खुद रियासत अपने ही कानून की खिलाफ वर्जी करती है, रियासती इदारे करते हैं। तो अब हल क्या है, दो पॉसिबल हल हो सकते हैं, एक तो आइडियल सोल्यूशन, एक पॉसिबल सोल्यूशन। देखिए आइडियल सोल्यूशन तो आइन का ये है जो इस वक्त मुमकिन नहीं है, यानी लेकिन उस पर बात करना जरूरी है, इसलिए कि आज नहीं तो 150 साल बाद हमें जाना नहीं है। आइडियल आइन क्या होगा मेरे ख्याल में, जो जिसकी 57 में नेशनल अवामी पार्टी ने जो दो रुकात अहम तरीन थे, वो एक तो ये कि आइन सेकुलर होना चाहिए, ये बात किसी न किसी को करनी पड़ेगी। और आइन का सेकुलर होने का मतलब ये नहीं है कि जो जैसे मौलवी अब्दुल हक ने अपनी डिक्शनरी में सेकुलरिज्म का तर्जुमा कर दिया लादीनियत, ये गलत तर्जुमा है, लादीनियत नहीं है। इसका मतलब ये है कि रियासत जो है वो न्यूट्रल होगी और रियासत किसी भी मजहब और फिरके की जानकारी नहीं करेगी जो पाकिस्तान में होता रहा है। ये रियासत का डोमेन नहीं है, मजहब लोगों का इंफरादी मामला है। तो हमें उस सेकुलर रियासत की तरफ आज नहीं तो 150 साल बाद जाना होगा, वो एक आइडियल सोल्यूशन है। दूसरा आइडियल सोल्यूशन जो नेशनल अवामी पार्टी का था वो कौम सूबाई मुख्तारी का था। और जब तक कि हम कौमों की जो हमारे यहाँ कौमें और कौमियतें हैं उनकी इरादियत को हमारा आइन तस्लीम नहीं करेगा, वो एक आइडियल आइन नहीं हो सकता। तो ये तो दो आइडियल चीज़ें हैं जो हमारे आइन को जल्द या बदल लानी है। इमीडिएटली क्या किया जा सकता है जो कि इस मौजूदा आइन के दायरे में रहते हुए किया जा सकता है। नंबर 1, जो आइन के तहत इलेक्शन होते हैं या होने चाहिए उनमें रियासती इदारों की मुदाखलत को यकसर और मुकम्मल तौर पर खत्म किया। ये सबसे अहम बात है। उसके बगैर
कहीं भी कोई आप जितनी भी बातें कर लें, क्योंकि इसमें इदारती तौर पर मुलविस हुआ जाता है। ये कह देना कि जी इंडिविजुअल्स थे, इदारा नहीं था, ये बात मेरे ख्याल में काबिल तस्लीम नहीं है। हम नहीं तस्लीम करते, मैं तस्लीम नहीं करता। इसलिए तस्लीम नहीं करता कि पूरा इदारा फायदा उठाता है, पूरे इदारे के लोग फायदा उठाते हैं। अयूब खान ने टेक ओवर किया, उसके साथ सारा पूरा इंस्टीट्यूशन था, या खान ने जो कुछ किया पूरा इंस्टीट्यूशन था। तो ये सिर्फ कह के जी इंडिविजुअल्स थे, ये बात आई एम सॉरी इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। और ये इदारे को जल्द या बदल माननी पड़ेगी ये बात। तो सियासत में और इलेक्शंस में रियासती इदारों की मुदाखलत को नंबर 1 खत्म किया जाए। जो आइन हमारे पास मौजूद है, इसमें जितनी भी सूबाई तौर पर मुख्तारी 18वीं तरमीम के तहत की गई है, जो कि अभी भी पूरी तरह से नाफिज नहीं हुई है, उसको लेटर एंड स्पिरिट में नाफिज किया जाए, नंबर 2। नंबर 3, जो पार्लियामेंट की कंपोजिशन है, जिसको कभी कभी लोग कहते हैं कि ये एलिट कैप्चर हो गया है। एलिट कैप्चर भी 2 तरह के हैं। एक एलिट कैप्चर वो है कि जिसमें आजकल ये बड़ा सियासतदानों को बदनाम करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाए, एलिट कैप्चर हो गया, एलिट कैप्चर, और उससे मतलब ये लिया जाता है कि सारे सियासतदान एलिट के हैं और वो पार्लियामेंट में आ गए। इस एलिट के ऊपर एक और एलिट भी है। कहा यह जाता है कि कानून की अलग अमलदारी होनी चाहिए और कानून सबके लिए बराबर पाकिस्तान में नहीं है और बड़े लोग कानून से बच जाते हैं। जरदारी जेल में रहे, नवाज शरीफ तिलावतन हुए, अचकजई को कत्ल कर दिया गया, बिजनजू साहब ने पूरी जिंदगी जेल में गुजारी। तो जितने सियासतदान थे वो कानून से बालातर नहीं थे, उनको सजा मिली, आखिरी मिनट में होगा उनको सजा मिली। लेकिन इसके ऊपर जो एलिट है, वो एलिट वो है जो किसी को जवाबदेह नहीं है, जो कभी जेल में नहीं जाती, जिससे कभी पूछा नहीं जाता कि आपने क्या किया, जिससे ये कभी सब जवाब नहीं दिया जाता कि जब मुल्क तोड़ा और हुकूमत रहमान कमीशन में कहा गया कि ये लोग जिम्मेदार हैं, उनमें से किसी को सजा नहीं दी गई। तो वो एलिट कैप्चर असल है, उस एलिट कैप्चर मैं तो पहली बार आपका बड़ा शुक्र हूँ कि आपने नाम नहीं लिया कि किसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जी थैंक यू। देखिए फ्रैंकली मुझे तो नहीं मालूम कि इस मुल्क के मसाइल का क्या हाल है। मैं सिर्फ आपको ये इस चीज़ पे बात करना चाहूँगा कि जो मुझे नज़र आ रहा है कि आगे क्या होगा। देखिए ये जो आपकी करंट रूलिंग एलीट है, ये बड़ी मुख्तलिफ है बाकी आपकी रूलिंग एलीट से, क्योंकि मेरे ख्याल में इनसे अब कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत या आसिफ जो कह रहे हैं लोगों के वेलफेयर, ये रेलिवेंट हो गए। तो वो जो गालिब ने कहा है ना, यार अब ये ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे और इनको जो ना दे मुझको ज़बान। तो आई थिंक इनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में कोई गुफ्तगू भी करना अब एक इररेलेवेंट बात है, ये सर दीवार पे मारना है। जो इन्होंने फैसला कर लिया है कि पावर इज पावर, अबे हम ना हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है ना हमें रूल ऑफ लॉ की जरूरत है। और जब पावर इज पावर, फिर उसका रिजल्ट सिर्फ 2 होता है, केओस एंड वायलेंस। अब इनका ख्याल ये है कि दे आर द बेस्ट मैनेजर्स ऑफ केओस, कि ये हर किस्म का केओस मैनेज कर सकते हैं। ये बलूचिस्तान भी चला सकते हैं विद सच एन इंसर्जेंसी, ये एक डोगर कोर्ट भी चला सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, एक सुप्रीम कोर्ट को डिसफंक्शनल कर दिया, ये वो भी चला सकते हैं। तो ये जो रूलिंग एलीट है, इसके बारे में मुझे ये समझ में आता है कि इनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता केओस और वायलेंस से, बिकॉज दे थिंक दैट दे आर द बेस्ट मास्टर्स ऑफ दिस। और इसलिए इनसे तो कोई गुफ्तगू नहीं की जा सकती कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज या रूल ऑफ लॉ लैंग्वेज। ये इसलिए मुख्तलिफ है पुरानी मिलिट्री एलीट से कि अयूब खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, इन लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अहमियत रखता था। ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाते थे,
but they understood the value کہ ایک رول بیسڈ سوسائٹی ہونی چاہیے. اس لیے ایوب خان 62 میں کانسٹیٹیوشن لایا. ضیاء الحق نے 77 میں کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ نہیں کیا. ایوب نے کیا یا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ضیاء الحق اور اس ملٹری لیگ میں یہ سینس تھی کہ ہم نے ایبروگیٹ کر دیا تو یہ ملک نہیں بچے گا. تو سیٹ وی ہیو ٹو ورک ود ان دس. مشرف جب 99 میں آئے تو انہوں نے فل بلڈڈ مارشل لاء نہیں لگایا, وہ چیف ایگزیکٹو بن گیا. تو ایک سینس تھی کہ آپ صرف کیوس اور وائلنس سے اسٹیٹ نہیں چلا سکتے. میرے خیال میں وہ سب اب ڈسپیئر ہو گئی ہے کہ یہ رول آف کیا لا کیا, یہ رول بائی لا بھی نہیں چاہتے. دیر شوڈ بی نو رولس. اف دیر آر نو رولس دیر از جسٹ پاور. تو اس صورت میں نظر یہ آتا ہے ہسٹوریکلی کہ یہ ملک دو قسم کی مثالوں کی طرف جا رہا ہے. ایک جاپان کی مثال ہے اور ابھی کرنٹ میانمار کی مثال ہے. جاپان کی اگر آپ انٹر وار ہسٹری اسٹڈی کریں گے, جو امپیریل ڈیموکریسی تھی جاپان کی, اس میں بھی ایگزیکٹلی یہ تھا. ایک وہ ہائبرڈ رجیم نہیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے ٹو گورنمنٹس. فوجی اپنی حکومت چلاتے تھے اینڈ دیر واز ڈیموکریسی. پرائم منسٹرز تھے, ایمپرر تھا, سب چیزیں تھی, الیکشنز ہوتے تھے اور اسیسینیشنز بھی ہوتے تھے. ڈیورنگ دی انٹر وار پیریڈ جاپان میں 3 اسیسینیشن ہو گئے. فوجیوں نے جا کے منچورین پہ, چائنا کے حصے پہ قبضہ کر لیا, پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں بتایا. آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ پرل ہاربر پہ اٹیک کس نے آتھرائز کیا. تو وہ بھی یہ سوچتی تھی جاپانیز ملٹری لیڈرشپ کہ ان کا فیمس ڈکٹم یہ تھا کہ ہمیں عوام کو سرو نہیں کرنا چاہیے, عوام کو ہمیں سرو کرنا چاہیے. یہ ایکچولی ان کی فلسفی, لکھی ہوئی فلسفی تھی. تو وہ ٹھیک ہے, they manage that chaos and they manage that violence. بہت وائلنس ہوا اس انٹر وار پیریڈ میں, بٹ الٹیمیٹلی آپ نے دیکھ لیا جاپان کا کیا حل ہوا, ایک سیلف ڈسٹرکشن. دوسری کرنٹ ایگزامپل آپ کو میانمار کی ہے. وہاں پہ بھی ایک لانگ ٹرم ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی. انہوں نے 2011 میں الٹیمیٹلی آن سوئی کو پاور ٹرانسفر کر دیا. لمیٹڈ پاور ٹرانسفر کیا تھا, فوجی تک پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے بہت ساری سیٹوں پہ. 2020 میں ایون آفٹر سو مینی کمپرومائزز انہوں نے آن سوئی کو نکال کے دوبارہ جیل کر دیا. اس کے بعد جس طرح 8 فروری کے بعد لوگ نکلے, ادھر بھی لوگ نکلے, ان کے اوپر وائلنس ہوا, ان کے اوپر گولیاں چلی. پھر وہ جو سارے لوگ تھے جو ایک پولیٹیکل پروسیس کا پارٹ تھے, وہ ایک اب گوریلا موومنٹ بن. آن سوئی کی پوری پارٹی نے گوریلا موومنٹ بنا لی ہے, اور وہاں پہ جو سیسیشنس موومنٹس چل رہی تھی بارڈرز پہ, وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے. اور اب وہ گوریلا موومنٹ پچھلے 5 سال میں انہوں نے 60% ملک پہ قبضہ کر لیا ہے. اور فوجی جو ہے انہوں نے ایک آرٹیفیشل شہر وہاں بٹھایا ہے, جی آرٹیفیشل شہر بنایا ہوا ہے, اور وہ وہاں رہتے ہیں کہ کب وہ شہر گرے گا. تو اگر اس رولنگ ایلیٹ کو اپنی سروائیول, ایک ایسی رولنگ ایلیٹ ہے جس کو اپنا سروائیول نظر نہیں آ رہا, اپنا سیلف انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا, ایک سوسائڈل رولنگ ایلیٹ ہے جس کو صرف ایک چیز نظر آتی ہے جو ہمیں ہمارے اس سے پہلے چیف جسٹس آپ کو نظر آتی تھی کہ میرے ٹینیور میں عیش کر لوں, میرا ٹینیور ایکسٹینڈ ہو جائے, بے شک اس سے پورا انسٹیٹیوشن تباہ ہو جائے. تو جس ملک میں ایک ٹینیور مینٹیلٹی ہو جائے کہ اس کے بعد آئی ڈونٹ کیئر واٹ ہیپنس, then that will just lead to chaos and violence, which I see happening. Thank you. The last one in the forgotten one, Zubair Parwani from Bahrain سوال. رائٹر ہوں, ایک صحافی ہوں, پبلک انٹلیکچوئل تو نہیں ہوں, یہ دعویٰ بڑا مشکل. اچھا, جب جہاں آئین کی بالادستی کی بات ہوتی ہے تو ہم جیسے مضافاتی لوگوں میں مایوسی پائی جاتی ہے اور مایوسی بڑھتی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ چند سال پہلے ایک ماں, ایک بیٹی اور ابو نے, اس کے باپ نے بڑی چیخیں لگائی آئین کی بالادستی کی اور فوج کی سیاست سے غیر مداخلت کی کے بارے میں. لیکن اینڈ میں یہ ہوا کہ وہی لوگ ان کے
सामने आ गए, उनके नीचे पड़ गए, उनके थले लग गए। इसी तरह आज का इलेक्शन बड़ा डटा हुआ है, हमें खुशी है कि वो लगता है ऐसा है कि वो डटा हुआ है, लेकिन कल अगर ये एक बड़ा सवाल है कि कल अगर इसके साथ भी कोई डील हो जाती है तो फिर कोई आर्मी चीफ कौन का बाप हो सकता है, ये भी एक सामने वाली बात है। दूसरी ये है कि आप देखें ये हमें उसूली जो हम ये हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनमें मुझे नहीं लगता है कि कोई एक बहुत ही अच्छे तरीके से जमहूरी या आइन की पालनदस्ती चाहता है, क्योंकि हमें मालूम है अभी जो अपोजिशन की बड़ी पार्टियां ये भी अब जो पेरिफेरी से फाटा से या बलूचिस्तान से जो आवाज़ें उठ रही हैं, मतलब महारंग है या मंजूर पश्तीन है, उनको ये मेन स्ट्रीम पार्टियाँ उनको उसको अटैक करते हैं, एंटी स्टेट और यही नैरेटिव चलाते जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट चलाती है उसके साथ चलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें हल होंगी, मायूसी है और मायूसी बढ़ेगी, क्योंकि सियासी शऊर इन पॉलिटिकल पार्टियों में भी बहुत कम नज़र आता है, कोई प्रिंसिपल स्टांस नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में, लिहाजा चंद छोटे मूवमेंट्स हैं उनके बारे में कह सकते हैं कि कुछ हो सकेगा। मैं इन बातों को छोड़कर कुछ कंक्रीट इश्यूज़ के बारे में बात कर लूँगा। वो नॉर्थ के शुमाल के हिसाब से डॉक्टर आसिफ ने शुरू में उनकी तरफ इशारा किया था कि किस तरह रिसोर्सेज की बात की जा रही है। कल मैं खबर पढ़ रहा था और कबल स्वात में एक जरगा हुआ, उस जरगे ने वहाँ छावनी की मुखालिफत की कबल स्वात में। तो वहाँ आपने देखा है स्वात में जो कुछ हमारे साथ गुज़श्ता 20 सालों में हुआ और हो रहा है वो इसी चीज़ के लिए था कि आपने किस तरह ज़मीनें हथियार लेनी है और किस तरह कैप्चर करनी है। इसके अलावा आप वहाँ कुछ चट्टानों पे हमने देखा है, चट्टान पे लिखा है, एक चट्टान पर मेरे ही गाँव का चट्टान है, उसमें लिखा है कि ये प्रॉपर्टी मिलिट्री की है। मैं हैरान कि किसने लिखा है, कब लिखा है, कहाँ लिखा है, लोग इतने डरे हुए हैं कि किसने लिखा है, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ये शिमाली इलाकों में ऐसा हो रहा है। आपको एक और पहलू की तरफ मैं उसके तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, उसमें खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट भी शामिल है, मरकजी हुकूमत भी शामिल है, उसके पीछे लोग भी शामिल हैं। भाषा डैम, हुकूकी भाषा दियामा डैम आपने तहरीक देखी होगी, वो क्यों उठी है उसको देखना है कि लोग क्या चाहते हैं, या नीचे दासू डैम के साथ क्या हो रहा है, वहाँ की ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, उनको देखना चाहिए। फिर आप आइए खैबर पख्तूनख्वा और रिन्यूएबल हाइड्रो पावर एनर्जी प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, असद साहब आप इसको नोट कीजिएगा। उसके तहत पूरे दरियाई स्वात को कैस्केड कर रहे हैं, मतलब उसको टनल कर रहे हैं, टनल में डाल रहे हैं पूरे दरियाई स्वात को हमारे इलाके में। मध्यम का नाम जो खूबसूरत टूरिस्टिक इलाके, इस तरह कुमरान वैली में भी। तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए, इन पैराफ्रीज को भी देखना चाहिए। ये हम इश्यूज में लगे हैं। हमारी जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो मुझे ये तवक्को नहीं करनी होती और मायूसी होती है कि ये कोई तब्दीली लाएगी। ये सारे इख्तिदार का एक जंग लगती है कि ये मरकज़ में ये हो रहा है, कोई किसी तरीके से आ रहा है, कोई किसी तरीके से आ रहा है, और एक बहुत बड़ा देव जो है वो इस मुल्क में वो काबिज है, सब उस देव को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारी सारी पार्टियां इस देव को मनाने की कोशिश कर रही होती है। ये एक बात है और हमें ये नज़र आ रहा है। तो लिहाजा मुझे नहीं, अब रास्ता क्या है, मेरे ख्याल में आइन की बातें करने से अब आइन के साथ भी ये खिलवाड़ वो उसी पार्लियामेंट के जरिए कर रहे होते हैं, जहाँ आपने देख लिया सब कुछ वही पार्लियामेंट के अंदर से कर रहे हैं। अध्यय के साथ वो कुछ अपने तौर पर वही कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आखिरी रास्ता बचा है मुजाहिमत, अवामी मुजाहिमत, और उस अवामी मुजाहिमत के लिए पंजाब, बलूचिस्तान, इनमें ये जो एथनिक डिवाइड है और वो जो नैरेटिव की जंग है, उस जंग से निकलना है और सबने मिलकर आगे बढ़कर इस पर कदम उठाना है। मेरे ख्याल में इसको ओपन अप करते हैं। As you know, I know Sarmal wants to come in at this stage. जो लोगों के comments हैं, if I can just quickly repeat them. Asim reminded us that economic rights are also human rights. They are fundamental, right? And if you don't fulfill them, don't say you're protecting them. Also,
ये So, Asim ने हमें याद कराया कि economic rights are also human rights. If we don't fulfill them, we are not protecting the constitution. नईम साहब ने, लोधी साहब ने शो किया कि politics, economic security are intertwined, और हमने इन सब चीजों को साथ लेके चलना है. And I think he's on the same wavelength as most of the audience, but nevertheless, he emphasized the role of the institutions. Zahid repeated a lot of the issues which Asim had also raised earlier, people's-based policies have to change, that, the rights of the people have to be protected, and if they are not protected, and he also said that faces have changed, but the structure has not changed, people's rights are being violated. He also referred to the role of the military. Farzana also referred to the role of the military, but she also said that every group in power reiterated the same anti-people policy. So ये एक किस्म का ट्रेंड इसमें चल रहा है. नाज़िर ने recommendations पेश की, secular constitution